Hello everyone, with your exam preparations going on sound, I believe, and I hope this is a quick video for your financial reporting new course paper with a week left for your exams. How do you strategize for the last 5 to 7 days, whatever you spend your time for financial reporting? I'll be talking about one ABC analysis for FR for the last week in terms of doing your last revision. Second, how should you strategize your preparation during these 5 days and in the exam hall and writing the paper? And finally, a personal mentoring program which I'm starting for all the students. Starting first and foremost with what should be the ABC analysis for this particular attempt. What I've done is I have identified important chapters apart from those chapters which have always been important. आप सभी को पता है कि number 1, financial instruments, consolidation, business combination, 116 leases, 115 revenue from contract with customers, and even schedule 3 in days 1. ये 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंस्टीट्यूट हमेशा पूछता ही पूछता है, which we also call as the major topics. You can add up share based payment also in it, and you can say that definite A category for every attempt. Apart from this, what I've done is standards which are critically important, like say borrowing cost 23, or even provisions, contingent liabilities and contingent assets 37. 105 in that sense are some standards which have got new questions in the study material 2021 which is applicable for December 21, plus these are also important from concept and past exam point of view. However, for some or the other reason, previously attempt the institute has not asked questions on these. So what I've done is I have created one quick snapshot of each FR paper analysis which I do. So I've created one pager snapshot. आपको यहाँ पे दिखेगा जुलाई 21, जैन 21 और नवंबर 2020 में कौन से क्वेश्चन किस किस पर्टिकुलर इंडेस और उसके किस सब टॉपिक से पूछे गए थे. उसके बेसिस पे I've created this quick ABC analysis for you. I'll just quickly take you through in terms of what it means. A category items are those which definitely needs to be done again and again. B category are also important. C is something which you can keep it for the end depending on how much time do you have for it. Framework of preparation and presentation of financial statement is a theory chapter, nothing to be done as such there. Then Index 1 along with Schedule 3, I would mark that as a important standard, because if you see even in the past exam, you will find a Schedule 3 or Index 1 based question almost in every attempt. In fact, in the previous 2 attempts, the questions which were asked were in the compulsory category. So once again, it would be a category item. इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पिछले 2 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, तो दैट इज वाई मैंने इस बार उसको सी कैटेगरी दिया है. कैश फ्लो स्टेटमेंट इंस्टीट्यूट ऑल्टरनेट अटेम्प्ट्स में पूछ रहा है, इन दैट सेंस आई हैव गिवन इट अ बी कैटेगराइजेशन, बट आई डोंट एक्सपेक्ट दैट यू मे हैव अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन. दो स्टडी मटेरियल में ऐसे फुल फ्लेजेड कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की भी क्वेश्चंस हैं, अगर आया तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. गोज विदाउट सेइंग 115 इज ए कैटेगरी, और अभी तक ज्यादातर क्वेश्चंस उसके ट्रांजैक्शन प्राइस से रिलेटेड पूछे गए. So if in case the institute decides to do something different, it can ask questions on contract cost or special issues which you study at the end of the chapter, or even in terms of identification of as in combination of contract or separate contracts or modification related questions. Then accounting policies in days 8 is a standard which has not been asked in the previous 3 attempts, और ऐसे सारे मैंने रेड में आपके लिए मार्क कर दिए हैं, तो आप इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा एम्फेसिस दे सकते हो. India's 10 events after the reporting period, usually an important standard. इसके ऊपर on off questions आते हैं. I think this attempt also, if not a standalone question, but in combination with some other question, maybe on provision, contingent liabilities or all, it could be asked. 113 fair value measurement, I am giving a B category because SM 2021 में इसके कुछ अच्छे questions ऐड किए थे जो अभी जुलाई 21 में at least पूछे नहीं गए थे. तो in that sense, you can look at those questions specifically. Index 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स बी कैटेगरी ऑन एंड ऑफ इंस्टीट्यूट पूछते रहता है. लास्ट टाइम में इसमें फर्स्ट टाइम अडॉप्शन कम कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आया था. शेयर बेस्ड पेमेंट यूजुअली यू विल हैव वन क्वेश्चन, आई मीन एवरी 4 out of 5 attempts you will have question on this particular chapter. क्या पूछा जा सकता है, तो they have asked a lot of questions in the past relating to equity settled or cash settled kind of plans. Last time cancellation से related इस पे क्वेश्चन पूछा गया था. आई थिंक इसमें या तो कोई बेसिक कैटेगरी का क्वेश्चन या ग्रुप, अगर आपकी कोई ग्रुप ईसॉप स्कीम है उसकी अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए उसके क्वेश्चंस क्योंकि एसएम में ऐड किए थे, तो पॉसिबल है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं. देन आफ्टर दैट if I come to other things, inventory, I'm giving A because
ओल्ड कोर्स में भी और शुरुआती दौर में न्यू कोर्स में इसके कई क्वेश्चंस आते थे, बट ऑफ लेट देयर वाज अ क्वेश्चन व्हिच इज देयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑन इन नवंबर 2020 attempt, but not in the previous two exams. India's 16 PP on and off आते रहता है बी कैटेगरी, डेफिनेटली लीजेस ए कैटेगरी. पिछली बार कोविड रिलेटेड रेंट कंसेशन का क्वेश्चन आया था, इस बार क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? मे बी समथिंग रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग लीजेस, मे बी समथिंग रिलेटिंग टू बेसिक क्वेश्चन और इवन सेल एंड लीज बैक. हालांकि सेल एंड लीज बैक वो लोग एक साल पहले पूछ चुके हैं. Borrowing cost, I have said that पिछले 3 attempts से नहीं आया, that is why I have categorized it as important because institute kind of likes the standard. 36 usually is an important standard. हो सकता है कि इसे एक स्टैंडअलोन ना पूछते हुए, क्योंकि रेपिटेटिवली इसके क्वेश्चंस आए, किसी क्वेश्चन में इसे ऐड कर दें, पर्टिकुलरली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस में. Then because a lot of assets do consequently get impacted by the impairment of assets requirement. Intangible assets again on and off पूछा जाता है, normal B category. Investment property also B category. 105 again, I have not seen questions in the previous 3 exams, if I not say the attempt exams, as in November 20, Jan 21 and July 21. So that is why I have given it a comparatively higher importance, which is B category. Agriculture is normal, so you can kind of look at it. There was a question which was asked there, so it could be a B or C category. Then employee benefits, definitely A category, and you can expect question maybe. So there was a question relating to leave encashment, so maybe you can get something on defined benefit scheme or termination benefits and all. This definitely is an A category because last 3 exams again no question on that. Index 12 income taxes, usual importance, 21 usual importance, so 12 is very important always, so it is A category. So is 33 earning per share. Then related party usually is not very important, so I've given it a B category. Similarly 21 on and off आता है तो B category. ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका था, तो आई डोंट एक्सपेक्ट रिपीट वापस शायद पूछेंगे, इसलिए आई हैव गिवन इट अ सी कैटेगरी. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट गोज विदाउट सेइंग ए कैटेगरी. बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग कि इस बार हो सकता है कि इंस्टीट्यूट दोस्तों मे बी इंस्टीट्यूट बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि प्रीवियस टाइम में वी हैड अ क्वेश्चन ऑन चेन होल्डिंग व्हिच वाज देयर. उससे पहले वी हैड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सिंगल सब्सिडरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. So it could be that this time they may have something different on you. Could be, let's say, reverse acquisition or a comprehensive business combination question covering a lot of exceptions. It could be you may have question which involve subsidiary, JV, associates, or multiple subsidiaries, or possibly a foreign subsidiary. I don't know, but then I have this kind of a feeling without doing any kind of astrology, but based on the last 15 years of my teaching experience, you may expect one of those non-standard questions in consolidation, business combination and corporate restructuring. Goes without saying कि ये मेरा personal opinion है. What happens in the exam? So in the previous 3 ABC analysis, we could find that 90% of the questions were either from A or B category item. In fact, previous attempt to previous attempt, 100% of the questions were from A category items, and there were 20%, as in 100 marks question were from A category and 20 marks odd were from B category. No question was asked from C category. But you never know कि as in ऊँट किस तरफ मुँह करके बैठेगा. I mean, what I'm trying to say is it's very unpredictable. This is just based on past patterns. Things may actually go somewhere here or there. Analysis of financial statement, nothing but a part of Schedule 3 India's one type based question or assorted questions from various indices. So it has no separate weightage of its own. And then we have integrated reporting and CSR. लास्ट टाइम CSR का आया था, तो इस बार IR का आ सकता है. इसके अलावा फर्स्ट टाइम एडॉप्शन का स्टैंडर्ड आपके केस में अपने आप में बड़ा ही स्ट्रेंज इंपॉर्टेंस का स्टैंडर्ड है, फॉर द सिंपल रीजन दैट 101 पर से इंस्टीट्यूट ने लास्ट टाइम इसके ऊपर एक छोटा क्वेश्चन पूछा था. बहुत सारे RTP MTP में इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आए थे. हालांकि आजकल ये इतना चर्चा में नहीं रहता है, तो वी रियली डोंट नो. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन अ बी कैटेगरी. आई होप दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ द ABC, and this is the basis for it. I have also given you the RTPs, MTPs, and this classification is not just based on the past exam question, but also what kind of questions they asked in the RTPs and the MTPs. चलिए, now आ जाते हैं दोस्तों अपनी कुछ ABC एनालिसिस के बाद कुछ सक्सेस स्ट्रैटेजीज पे. These are my suggestions, inputs, or recommendations. You want to pick and choose any of these which you feel as relevant for you, or you can also alternatively decide to follow all of them. First and foremost, आखिरी हफ्ते में क्या करना चाहिए, FR कैसे अप्रोच करें, how to begin with it, as in because it is a very vast subject, और हो सकता है आपने इसको आज से पहले 1-2 महीने पहले उठाया हो, unless आपने FR पावर की हो. तो आपको अगर एक सीक्वेंस का इशू आ रहा है, तो आई वुड रादर से दैट इफ यू आर श्योर ऑफ योर सीक्वेंस,
then follow that. If you are not sure, I will suggest a sequence. Start with schedule 3 Ind AS 1, then you should go to financial instrument, then consolidation, business combination, and then share based payments, then 115 and 116. ये सारे बड़े बड़े चैप्टर्स जिससे ऑलमोस्ट आपका 70 ऑड मार्क्स का कवरेज हो जाता है, ये कवर हो जाएंगे इफ यू फॉलो द पास्ट पैटर्न. प्लस ये लेंदी है, इसमें कभी थोड़ा टाइम आगे पीछे भी अगर आपका हो गया तो यू स्टिल हैव अ बफर टाइम. So do not pick any of these questions at least in the last 2 to 3 days and complete it much before that. And then after that you can just either follow the ABC thing or sequentially you can do it. Remember जब आप पढ़ रहे हो तो कुछ भी नया उठाने की जरूरत नहीं है, जो अब आप पढ़ चुके हो बस उसी पे ध्यान दो, अब नहीं मत ढूंढो, जो है बस अब उसके साथ ही आपको गुजारा करना है. दिस इज अबाउट द सीक्वेंस. हाउ टू रिवाइज सर, कोई चैप्टर हमने पिक किया तो कैसे करें? आइडियल स्ट्रैटेजी वुड बी कि आप सबसे पहले आप अपनी कॉपी या बुक जिससे भी आपने पढ़ा है, सो इफ यू बीन रेफरिंग ब्रह्मास्त्र और आवर बोर्ड नोट्स या आपकी जो भी आपने आपकी टीचर से पढ़ा है और कॉपी बनाई है, आप सबसे पहले उससे पढ़िए. क्या इससे पहले कोई रिवीजन लेक्चर देखे जा सकते हैं? दैट कुड बी अ रियली गुड स्ट्रैटेजी इफ यू हैव आइडेंटिफाइड और इफ यू are having something available which interests you or you want to find it. You can look at revision lectures of a particular chapter. So we've shared for almost every chapter on YouTube. आप उसको एक बार quickly go through कर सकते हो, which will help you to kind of refresh all your memories, particularly for the larger or the lengthier chapters like consolidation, business combination, financial instrument. तो आपको अगर 3-4 घंटे के एक लेक्चर में एक पूरा अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है पूरे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का, दैट विल हेल्प यू टू व्हेन यू स्टडी, फिर आप एकदम चीजों को इंटरकनेक्ट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे. सो दैट्स जस्ट अ बोनस टिप. इफ यू वांट टू सी द रिवीजन वीडियोस, आई वुड नॉट से डेफिनेटली यू शुड, बट लॉन्गर टॉपिक्स यू कुड पॉसिबली लुक एट इट. अदरवाइज रेफर योर कॉपी एंड बुक. एंड देन व्हाट अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स सर? सो Q&A के लिए आइडियली अगर आपने पहले जब पढ़ा था तब आपने अगर कोई प्रकार की मार्किंग कर रखी है तो ऑब्वियसली वो मार्क्ड क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है. और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरी स्ट्रैटेजी समझिए. मेरे हिसाब से आई कैन क्लासिफाई क्वेश्चंस इन FR in 3 कैटेगरी, विच इज न्यूमेरिकल जिसमें कैलकुलेटर यूज होता है, नॉन न्यूमेरिकल जिसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है लेकिन कैलकुलेटर नहीं, और थ्योरी जिसमें ना कॉन्सेप्ट है ना कैलकुलेटर है, सब थ्योरी है. एग्जाम्पल ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस इज इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन, या क्या ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, कंट्रोल की डेफिनेशन या उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, बिजनेस की डेफिनेशन उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, स्टफ लाइक दैट. नॉन न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल्स कुड बी is this event occurring after the balance sheet date, and adjusting one, non-adjusting one. These involve application of concept but do not necessarily involve calculations. And then you have the numerical ones. मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि जो थर्ड कैटेगरी है प्योर थ्योरी, क्योंकि पास्ट एग्जाम्स में आती नहीं है और इस तरह के क्वेश्चंस आई वुड से कि 10 अटेम्प्ट में एक आध अटेम्प्ट में आ सकते हैं. इफ यू आर अनलकी इनफ यू मे फाइंड अ क्वेश्चन लाइक दिस, अदरवाइज नॉट. सो यू कैन जनरली अगर पहले पढ़े तो एक बार स्किम थ्रू कर लो, क्योंकि जो पढ़ा है वो एक बार आखिरी के 5-7 दिनों में देखना चाहिए, अदरवाइज यू कैन काइंड ऑफ जस्ट स्किप इट ऑफ. देन कमिंग ऑन टू द नॉन न्यूमेरिकल बट नॉन थ्योरी क्वेश्चंस एज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, आई वुड सजेस्ट कि इसको आपने जो इंपॉर्टेंट मार्क करे हैं, या फिर मैंने एक सुपर 100 क्वेश्चन बैंक शेयर करी है और एक सुपर 400 विच इज FR पावर के स्टूडेंट्स के साथ शेयर की थी. दोनों अवेलेबल है, आई विल गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. इफ यू वांट टू रेफर दैट पर्टिकुलर मटेरियल, अनलेस यू फील दैट वुड बी अ न्यू मटेरियल एंड आई वांट टू अवॉइड इट, दैट्स डिफरेंट. आप इसमें से उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, उन पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके आप एटलीस्ट उतने क्वेश्चंस तो डेफिनेटली कवर कर लें. अदरवाइज आपके जो भी इंपॉर्टेंट मार्क्ड है, या आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबली आ सकते हैं, मे बी ये स्टडी मटेरियल के टेस्ट या नॉलेज वाले या रीसेंट RTP MTP के क्वेश्चंस है, तो आप उस पर फोकस करके उसे देखें. इनको पढ़ते समय पर्टिकुलरली जो इसके सजेस्टेड आंसर्स लिखे हुए हैं, अगर आप स्ट्राइकर रेफर करते हैं तो हर क्वेश्चन का आंसर होता है, जितने भी आपके इंस्टीट्यूट के मटीरियल से रिलेटेड है, उन सारे आंसर्स को रीड थ्रू जरूर करें. उसमें मे भी अंडरलाइन और मार्क कर दें कि इसमें क्या क्रिटिकल लैंग्वेज पॉइंट्स हैं जो आपको रेप्लिकेट एग्जाम में करना पड़ेंगे. मे नॉट बी विद द सेम ग्रामर बट एटलीस्ट कवरिंग दोज पर्टिकुलर एसेंशियल पॉइंट्स, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पे आपका सो कॉल्ड प्रेजेंटेशन या जो कंटेंट है वो मैटर करेगा. जहां तक प्रैक्टिकल्स की बात है, यूजुअली प्रैक्टिकल में जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या पूछा है, और उसके बेसिस पे आप अपने वर्किंग नोट्स और आंसर प्रिपेयर करोगे, तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करने वाला पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल नहीं होगा. एज इन कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, पूछा है प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, तो देन डेफिनेटली योर आंसर शुड हैव द बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेटेड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, rupees in lakhs, all that stuff mentioned, symbol of rupees, then proper headings,
line item, sub-line item, notes to financial statement, everything. But if it simply says prepare consolidated balance sheet, you can kind of be a little flexible in terms of having the precise format, and you can look at doing it very quickly. So based on what is asked in the question, you just have to solve the practical questions. You don't have to focus too much in terms of what all things are given in the suggested answer in terms of the explanatory part, and I have to kind of replicate it. So follow this strategy. एंड आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप क्या करें कि आपकी क्वेश्चन बैंक जो भी आपने रेफर किया है उसको पढ़ने के बाद एटलीस्ट जो मेरी सुपर 100 है उसके क्वेश्चंस पूरा एफआर एक बार हो जाने के बाद पलटा के देख लें. ये वाला क्वेश्चन ओके क्या ये मुझे याद आ रहा है, इसमें क्या पॉइंट थे, हाँ इसमें ये वाला इशू था, डाउट था, एक बार देख लेते हैं. वो सुपर 100 क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप देख सकते हैं. देन यहाँ पे मार्क करते जाना कि एग्जाम से एक दिन पहले क्या कोई क्वेश्चन आपको लगता है लास्ट डे रिवाइज करना है, मे बी उसका कंटेंट आपको याद रखने के लिए, या न्यूमेरिकल का कोई पार्ट है, पोर्शन है जो आपको बड़ा ट्रिकी लगा है, या आप बार बार उसमें कंफ्यूज होते रहे हो, तो आप चाहते हो एक बार उसको एग्जाम से पहले देखना चाहोगे जस्ट डे बिफोर 4th of December को, then you can mark those particular questions right at this revision stage and then definitely look at those questions on a day before the exam. एटलीस्ट 3 आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस आपके कवर्ड होना चाहिए. वी हैव वीडियोस फॉर ईच एंड एवरीथिंग ऑन यूट्यूब. यू कैन काइंड ऑफ रेफर देम इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन दैट, और you can save time in terms of referring those videos, or if you already have a printout of the PDFs of these forms, you should definitely go through these questions. पिछले अटेम्प्ट में SM 2021 के RTP, recent RTP के कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे जुलाई 21 में, तो सिमिलर थिंग may happen in the December 21 exam. I think this is for the last week. Then last day, what do you do? कोशिश करना कि जितना आपने पढ़ा है एक दिन पहले, अनलेस एंड अनटिल कोई सी कैटेगरी आइटम है तो ठीक है, अदरवाइज आप पूरा रिवाइज करिए, जस्ट फॉर द रीजन दैट एक दिन पहले चीजें फ्रेश दिमाग में रहती है, तो एग्जाम में उसका क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली क्या होता है वो इमीडिएटली एकदम जुबान पे बाहर आती है. इट्स लाइक शेरो शायरी हम खूब लिखते हैं पर वो सामने आई और हमको एकदम से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला इसको हमें इस बार इसके ऊपर लगाना है, बट देन 1-2 दिन पहले ही हमने कुछ रिवाइज किए थे और वो सामने आई और फिर हमने तड़ 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 ऐसे दिए, तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस व्हिच यू विल हैव इन टर्म्स ऑफ पुटिंग द those things across. तो उस एंगल से एक दिन पहले का going through each and everything, that notion a lot of people have, I also had as a student. I would recommend कि एक दिन पहले आप पूरा स्किम थ्रू एक बार कर लें, और जो चीजें आपने मार्क कर रखी है, जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताया लास्ट डे के लिए मार्क करिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको आप रिव्यू कर लीजिए. दैट्स अबाउट इट फॉर द लास्ट डे. सर फाइनली पहुंच गए 5 दिसंबर को, और अब हम एग्जाम हॉल के बाहर आ चुके हैं, और अब हम सारी कॉपी किताबें पैक करके साइड में रख के आंखें बंद करके आलोम विलोम के 4 शॉट्स लगा के अब हम अंदर जा रहे हैं, और अंदर जाने के बाद अब हमारे हाथ में पेपर आ गया. क्या करना है? When you get a paper, your notion should be what? So now that depends in terms of your confidence level. One approach of taking up the paper is कुछ नया नहीं आ जाए. This is something who is not really prepared. And honestly speaking, more so for those people who have not really prepared and put in the last effort very well. कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ जाए, अरे यार घबराता है वो. इट्स लाइक आप सोचो कभी दोस्तों क्रिकेट का मैच चल रहा है और एकदम आपको लग रहा है कि यार अब बहुत ही एकदम इट इज गोइंग टू द वायर एंड इट इज बिकमिंग वेरी टफ. व्हाट हैपेंस इन सच केसेस? बहुत फास्ट एकदम खतरनाक बॉलर जिस 5 विकेट ले चुका है और उसके बाद वो डाले जा रहे हैं, और फिर भी लेट्स से फॉर एग्जांपल उसके बावजूद भी धोनी जी जो नीचे आने वाले थे वो कहते हैं कि नहीं यार मैं ऊपर जाऊंगा, बिकॉज ही इज नॉट अफ्रेड फॉर टेकिंग दैट बॉलर, ही इज रादर टेकिंग इट एज अ चैलेंज कि यार भैया मुझे जिता के लाना है. तो ये कॉन्फिडेंस आपकी प्रिपरेशन से आता है. नेवरदलेस जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड अबाउट कि यार अगर एक आध लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई बॉडी लाइन बॉल आ गई तो मेरा क्या होगा. आई शुड रादर से दैट ओके नो प्रॉब्लम, आई एम श्योर दैट आई हैव टू आइडेंटिफाई द लूज बॉल्स एंड आई हैव टू मेक अ स्कोर आउट ऑफ देम. डू नॉट रियली वरी टू मच अबाउट द अदर्स. तो जब आप 15 मिनट रीडिंग टाइम में पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग पे फोकस क्या होना चाहिए? आपका पढ़ते समय फोकस सिर्फ इतना होगा कि I have to identify that question जिसके सारे parts मुझे सबसे अच्छे से आते हैं. It's like you go to a party of your friends which is full of a lot of people. You know all of them, almost all of them, and you go there alone. What happens as soon as you enter that particular party? Now you've gone there to enjoy, but as soon as you go in, what do? You may possibly look at your BFF and then you will possibly first go and talk to them. You will start feeling comfortable with those set of group of people, and then you will kind of expand your horizon and then you will explore new avenues. There could be some difficult nuts to crack जिसके साथ आपका past experience बहुत अच्छा नहीं रहा है,
बट आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल अपने दोस्तों के साथ एक कंफर्ट जोन में आने के बाद वो भी आप शायद क्रैक कर पाएंगे. जस्ट हैव दैट नोशन इन योर माइंड व्हेन यू गो इन द एग्जाम. It's a party, and in this party I know everything. There could be some difficult nuts to crack, no problem. I know most of them, and some of them are my real good best friends. You have to identify that kind of question, and सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना है. तो आप ये देखो कि कौन से क्वेश्चन के दोनों तीनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से आते हैं. सबसे पहले उस क्वेश्चन को पिक करिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन पढ़ते समय कोई क्वेश्चन अगर आपको ऑफ बीट आ जाता है, पहला क्वेश्चन डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स आ सकता है. अगर आ जाए तो बोलना इंस्टीट्यूट मालूम था हमें तुम्हारी हरकत, तुम्हारे साथ माइंड गेम खेल रहे हो, पर हम तुम्हारे को हमारा गेम नहीं करने देंगे, गेम तो हम खेलने आए हैं. तो पहला क्वेश्चन टिपिकल डिफिकल्ट आ जाए, नो वरीज, वी न्यू इट, इट इज देयर, नो प्रॉब्लम. आइडेंटिफाई किया, वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए. मेरी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आप एफआर के पेपर के लिए ध्यान रख लीजिए. पहला पेपर है, आपकी स्पीड डेफिनेटली कम रहेगी. अगर आपको मेरी कोई चीज एग्जाम हॉल में जो मैंने पढ़ाया वो चीजें गूंजे, उसके अलावा अगर कोई चीज आपके दिमाग में गूंजना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज, स्पीड स्पीड एंड स्पीड. दैट डज नॉट मीन जिसकी शुरू से ही सिग्नेचर हैंड राइटिंग लगती. दैट जस्ट मीन्स कि आपको कहीं पर भी ऐसा कलम उठे, सोचें, बेहतर करें, इसको और ऐसा प्रेजेंट कर दें, ऐसा ख्याल आए तो बोलना नहीं, आगे बढ़ो. Do not spend too much time. Spend. It is no investment too much time on presentation. I'll give you a trick for presentation. Take my tip. 175 मिनट्स में पूरा पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करो. आखिरी के 5 मिनट प्रेजेंटेशन के लिए रखो. आखिरी के 5 मिनट में जो कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट्स करना है, फिनिशिंग करना है जो क्वेश्चन के आंसर्स में, और एक बार पलटा के रिव्यू करना है, ये कर लेना. हर पेपर में करना. मेरी गारंटी है दोस्तों आपको, अगर आपने 5 मिनट सारे पेपर में सारे क्वेश्चंस रिव्यू करने के लिए इतना समय दिया, आपको हर पेपर के बाद लगेगा कि यार इस रिव्यू के कारण ही मेरे 2 से 5 मार्क बढ़ गए. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन जल्दबाजी में चीजें लिख देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, ये सोच के बाद में लिखेंगे, फिर भूल जाते हैं. रिव्यू करोगे ध्यान आएगा. कई बार पूरा क्वेश्चन लिख दिया, आखिरी में आंसर लिखने की एक लाइन रह गई, फिर आपको लगा कि यार इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पे 2 पे अंडरलाइन, 3 पे अंडरलाइन करना है. ये सारा काम आखिरी 5 मिनट में करना है. ये इस बार के रैंकर्स और पिछले कई अटेम्प्ट के रैंकर्स ने इस चीज को रीएंडोर्स किया है कि वाकई वो लोग भी ऐसा करते हैं. और सर पूरा पेपर होता ही नहीं है, कहां से 5 मिनट निकालेंगे. नंबर 1, कोशिश करोगे 5 मिनट टारगेट रखोगे तो 2 मिनट तो निकलेंगे, जो बेयर मिनिमम. सेकेंड, अगर आप शुरू से स्पीड पे ध्यान रखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि शायद पेपर अटेम्प्ट ना हो, अनलेस एंड अनटिल पेपर बहुत ज्यादा लेंदी है, जिस केस में मेजॉरिटी लोगों का छूटेगा. बट देन इफ द एवरेज टाइम फॉर सॉल्विंग द पेपर इज समथिंग व्हिच मोस्ट ऑफ देम आर और मोस्ट ऑफ अस आर एबल टू सॉल्व, देन वी शुड आल्सो बी एबल टू सॉल्व दैट पेपर. सो पेपर 1 में स्पेसिफिकली प्लीज स्पीड का ध्यान रखिएगा. रिव्यू के लिए समय रखिएगा, डेकोरेशन पे समय मत देना. And do not think of other questions while you are solving the questions. Once you know the best, start with them and definitely शुरू के 15 मिनट में बस ये आइडेंटिफाई कर लो, नंबर 1 पहला कौन सा सॉल्व करना है, और नंबर 2 पॉसिबली इलेक्टिव क्वेश्चन में हमें कौन सा क्वेश्चन, एज एन ऑप्शनल क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है. एंड नाइट बिफोर एग्जाम, तो ये तो एग्जाम हॉल से मैं फ्लैशबैक में आपको ले जा रहा हूँ, और जब आप सोओगे तो आप एक बार फैंटेसाइज करोगे अगले दिन का पेपर कैसा होगा. अब इज इट अ फैंटेसी ड्रीम और इट्स अ नाइटमेयर? आई एम श्योर इट विल बी अ फैंटेसी ड्रीम फॉर यू. इन फैक्ट वी आर गोइंग टू मेक दैट ट्रू. सो जब आप वहां पे सोओगे और आप कोशिश करेंगे इनफैक्ट सोने की, और नींद हो भी सकता है एकदम से ना भी आए आपको, just do a role play in terms of kind of dream it like that I am in the exam hall. What possible question paper patterns can I expect? बाबा पहला क्वेश्चन ही खतरनाक आ गया, ऑफ बीट एकदम, 2-3 इंडेक्स मिला के कुछ पूछ लिया, कोई ऐसे टॉपिक से आ गया जो मैंने नहीं किया था, एकदम से कोई 101 या इस टाइप का कोई चैप्टर का जिसकी मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम है, या मैंने फॉरेन एंटिटीज के कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, वो कुछ भी ऐसा ऑफ बीट क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे? ये रोल प्ले कर लेना. तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू गो इन द एग्जाम, अगर ये पॉसिबिलिटी आती है तो यू ऑलरेडी मेड अप योर माइंड कि ठीक है ऐसा हुआ तो आई मेड अ स्ट्रेटजी, मैं दूसरे क्वेश्चंस पे हाफ करके फिर इसको हैंडल करूंगा. डेफिनेटली मैं कहता हूँ 15-20 मार्क वाले क्वेश्चन आखिरी के आधे घंटे में नहीं करना चाहिए, उससे पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए. बट देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये सब चीजें आपको पहले से प्लान करना. क्वेश्चन बहुत इजी आ गया, मेरे को लग रहा है सारे क्वेश्चंस अगर मुझसे होने लग गए, सर ऐसा भी नहीं होता कभी, पर कभी ऐसा हो गया तो वो भी सोच के रखो कि उस केस में मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कौन सा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिकली एंड के लिए रखूंगा, शुरू में कौन सा लेना कोशिश करूंगा, कितना मिनट मुझे आखिरी में रखना है, टाइम में कितनी बार देखूंगा, क्या मेरा टारगेट है, क्या मुझे हर डू आई हैव टू कीप दैट रेशियो ऑफ 1.8 मिनट्स पर मार्क, और डू आई हैव टू कीप अ रेशियो ऑफ 1 first hour I have to complete say 30 to 35 marks of paper and then 70 marks and then 100 marks. ये सब चीजें आप एक बार सोच के वहां पर जाओगे तो कोई भी तरह की पॉसिबिलिटी आएगी, आप ऑलरेडी उसके लिए अलग अलग आपकी स्ट्रैटेजीज और प्लान्स बना चुके हो. दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प. That's about it. This is all my strategy, tips and tricks, which is for your FR exams and will help you in all the other exams. I will come with an ABC kind of a thing for your audit also before the paper. There'll be some other videos also which will be coming up.
अपार्ट फ्रॉम दैम मेंटरिंग थिंग, टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है जिसका चैनल, इनफैक्ट ग्रुप का आपको लिंक चैनल पे भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में भी दिया गया है। इसमें सिर्फ December 21 के स्टूडेंट्स आएंगे। आपके एफआर और आर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, या एग्जाम प्रिपरेशन या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड किसी प्रकार के क्वेश्चन है, या आपकी कोई दूसरे भी इश्यूज हैं जिसको आपको लगता है कि भैया हम सॉल्व कर पाएंगे, एज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, गेटिंग नर्वस, नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट टू डू, प्लीज फील फ्री टू पुट दोज थिंग्स इन द ग्रुप. I will try to personally, through a voice note, answer, personal note, whatever, try to answer at best of them. So these last few days obviously our complete attention and focus would be on all you guys. I would be available till 3rd of December for all of you. 4 दिसंबर दोस्तों आपकी है, वो पूरा आपको मैनेज करना है. मैं 3 इसलिए रख रहा हूँ, रखने के लिए मैं 5 तक रख सकता हूँ, but I want you to complete each and every of your query, everything by 3rd, so that you are well prepared. 4th you keep for yourself, and you know कि सर अवेलेबल है 3 तारीख तक, इसलिए हमको वहां तक सब कंप्लीट करना है. तो 3rd of December तक I am at your complete disposal. Ask all your questions, anything what you want in that particular group. और इस बार हल्ला बोल बहुत बढ़िया करके आइएगा दोस्तों. एग्जाम अपनी तहे दिल से, पेपर एकदम शिद्दत से खेल के आइएगा. पेपर है, खेल के आना है अपने को और बेहतरीन प्रदर्शन देकर आना है. Be what the paper may be, I will try to give in my best. If the paper comes a very, very tough, people come out there out of the paper with red faces. I mean, I will also have a red face. I may come out with a pink face, if not a red face. People come out smiling. I will come out, exuberating with, immense glow on my face. I will not say laughing. वो stage तो नहीं आएगा. But then, that is something which I wish for all of you. All the very best for your preparations.